Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. सब्सक्राइब और चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक मिल सके। अबाउट अस, बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू. Spread the word among those your friends and share for those people who can't afford the coaching classes, and learning is priceless, so please do at least. Those students who are financially weak, that's why we are making this channel for them. I dedicated this channel to all of those people. If you want any specific topic video, then do comment on our Facebook channel, that is here facebook.com/current affairs funda CAF. ये हमारा करंट अफेयर्स फंडा का चैनल है। यहाँ पर आप फेसबुक पर भी आप अपनी क्यूरी दे सकते हैं। ओके, one thing more, friends, watching this part 6, I will recommend you, first of all, for the new user, watch introduction part. After that, 1, 2, 3 and 4 and 5, these are the essentially important parts that you should know. सबसे पहले आप पार्ट अगर 6 डायरेक्टली देख रहे हैं तो आप पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें, SICI है क्या, और 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे पार्ट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। वो सारे क्वेश्चंस आप बना लें। फाइन। So this is first type of question here at compound interest. Okay, so friends, these videos will in the format of bilingual, that means I will explain the video in English as well as Hindi. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बताऊंगा और यहाँ पर क्वेश्चन पहले इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, फिर आपको हिंदी में भी उसका मतलब समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनी प्रिंसिपल becomes 6 times in 15 years with simple interest. Find the time in which that principal becomes 16 times. So first of all, underline all the terms that I have underlined that in. जिसको मैंने अंडरलाइन करा है वो सारी टर्म आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फाइन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एक प्रिंसिपल जो है वो 6 टाइम जो है 6 टाइम्स होता है 15 साल में SI पर। तो आज हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे SI पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, उसके बाद यही सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे CI पर। ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच दैट प्रिंसिपल बिकम 16 टाइम। तो आपको ये बताना है कि वो 16 टाइम कब होगा। फाइन। सो फ्रेंड्स, these questions are a bit tricky. You can solve this question in only 10 seconds. How? See right now my approach here. First of all, this is a formula that generated from my team side. That we can say this is not a formula. We can also say this is just a very basic trick approach that I have converted into the formula. ये एक ट्रिक है जिसको मैंने एक फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। So first of all, you just need to write down here n-1 into t divided by times that is given initially in the starting minus 1. Okay, so kindly note down this formula. We will solve all these type of simple questions as per this formula. Okay, this is just simple formula. What in our question that is given here, 6 times is equals to 15 year and 16 times it will be in what year. Okay, so this is your question here. So first of all, this is your times that you need to put here. Fine. This is n, just you need to put this n here, and time that is given here 15. Fine. So put all these values here. So it will be 16 minus 1 into time, that means 15, divided by, basically this is 6 times, that means 6 minus 1 it will be 5. So we can say 6 minus 1 15, 15 into 15 that will be 2 to 5, divided by 5 it will be 45 year. That is your answer. Fine. If you are going to solve this question from the base method, then definitely you cannot solve this question in 4 to 5 minutes. Okay, and I'm not going to solve this question from the base method also, because this is the fundamental and basic trick that you need to apply in same questions. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बेस से नहीं बनाने, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से बनाने। देखिए 6 टाइम दिया है कि वो 15 साल में हो जाता है, तो 16 टाइम कब हो जाएगा।
तो मैंने आपको अप्रोच बताई कि टाइम्स -1 से तो आपको डिवाइड करना है, मतलब जो 6 टाइम दिया है उसमें से 1 घटा देना है, और जो ये 15 साल दिए हैं ये टाइम है, टी के बराबर है, और जो 16 दिया है टाइम ना, इसमें से आपको 1 घटाना है, ये आपका एन है, ठीक है। तो n -1 मतलब 16 -1, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम 6 दिया है, 6 -1 5 कर दिया, यहां से मैं 45 निकल के आ गया। सो फ्रेंड्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर on the same, that is this is for SI. Any principal becomes 2 time in 8 years, that means 2 times in 8 year, then what it will be 15 times in how much years? This is your question here. So first of all friends, 15 minus 1, that means n minus 1, 15 minus 1 into time 8 divided by 2 times, that means 2 minus 1, this will be 1. So 15 minus 1 14, 14 into 8 it will be 112 years, that is your answer. तो ये आपका आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में। दोगुना मतलब 2 टाइम्स होता है 8 साल में, तो 15 टाइम कब हो जाएगा, मतलब कि जो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई टाइम्स -1, सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 15 माइनस 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स है, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो 15 में से 1 घटाया कितना हुआ, 14, 14 इंटू 8 कितना हुआ, 112 हुआ, 112 साल हो जाएगा आंसर इसका। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम टाइप का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ईयर। एनी प्रिंसिपल बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स विद SI। काइंडली नोट डाउन दिस थिंग हियर। अगर ये CI दिया होता तो दूसरी अप्रोच होती, लेकिन यहाँ SI दिया है। फाइंड द टाइम इन विच दैट प्रिंसिपल बिकम्स 9 टाइम्स। ओके, सो वी कैन से 3 टाइम्स is equal to 10 years, fine. 9 times in how much years? So what, just 9 minus 1 multiply with total 10 year divided by 3 times minus 1, that means 3 minus 1 2. So 9 minus 1 it will be 8, 8 into 10 80 divided by 2 it will be 40 year. I hope you all are understand. आप सबको समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है, देखने को जरूर मिलता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है। आप इसको समझ लो, और कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, बहुत इजी है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला था, n माइनस 1 इंटू टी डिवाइड किससे करना है, टाइम्स -1 से, ठीक है। और टाइम्स क्या है, जो स्टार्टिंग में दिया है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। और बाद वाला जो ये दिया हुआ है ये आपका n की वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स सी द सेम क्वेश्चंस ऑन CI बेसिस। अब यहाँ पर CI दिया होगा, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर। Any principal becomes double in 7 years at compound interest. CI, find the time in which that it becomes 32 times. Okay. अगर कोई भी प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है, मतलब कि दुगना डबल हो रहा है 7 सालों में, तो आपको ये बताना है कि वो 32 टाइम जो है वो कितने सालों में होगा। फाइन। सो फ्रेंड्स काइंडली नोट डाउन, इफ that is double, so you need to make the power 2. If this is triple, then you need to make the power 3 here, and this is fourth, then you need to make the power 4 here. So I will explain what is the meaning of all these terms. देखिए, अगर डबल हो रहा है तो पावर 2 लगानी है, ट्रिपल हो रहा है तो पावर 3 करनी है, और अगर फोर्थ टाइम हो रहा है तो पावर कितनी करनी है, 4 करनी है। इसका मतलब मैं भी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो डबल हो जाता है 7 साल में CI पर। अब आपको ये बताना है कि टाइम बताना है कि कब वो 32 टाइम हो जाएगा। So friends, see right now, double, that means 2, that means you need to take the power as a 2. Okay, in how much year, 7 year, and in how much time, it will be 32 times. So friends, 32 is equals to what in the terms of 2 is to power, so it will be equal to 2 is to power 5. 2 is to power 5, that means 2 into 2 into 2
into 2 5 times, that will be equal to 32. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब ये 32 हो गया। 2 की पावर 5 जो है 32 हो गया। अब ये 7 साल में हुआ था ना, तो कितने सालों में पूछा, ये 32 होगा। सो फ्रेंड्स, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस पावर with this year. So take a multiplication here. So what output will be here? 5 into 7, that is 35 year. That is your answer. You can solve this question in either 10 seconds if you are very good in practicing the questions. अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इसको 5 से 10 सेकंड में ऐसे ही उड़ा दोगे देख के। मतलब क्या है, डबल हो रहा है, मतलब कि पावर 2 बनानी है। 32 टाइम कब होगा, 2 की पावर 5 में होगा। अब डबल 7 साल में हो रहा है, तो पावर जो है ना 2 की पावर 5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, मतलब 35 साल में हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 साल। फॉर जनरल क्यूरीज, इफ that is given like in the form of 2 is to power 4 and this is 6 years, that means 4 into 6, fine. So this is very simple. तो देखिए इस तरीके से ही करने हैं। और क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट में हम। प्रॉब्लम नंबर 5 here, क्वेश्चन नंबर 5 here. Any principal that becomes double in 6 years at CI. Kindly note down here CI. If this is SI, so approach the question number 1 is to 3, 1 से 3 तक की अप्रोच लगानी है अगर CI SI दिया है। अगर यहाँ CI दिया है तो क्या करना है हमें, ये अप्रोच लगानी है। So find the time in which 4000 rupees becomes 1024000 rupees. Okay, so this question is a bit tricky. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बिल्कुल सेम अप्रोच बेस्ड है। So friends, see right now. First of all, divide this second amount, that means 1024000 divided by this amount 4000. So what it will be, 256 times, fine. So now the question is very simple, double, that means power 2. Okay, so 256 is equal to what in the terms of 2 is to power, so it will be 2 is to power 8, fine. And this is in 6 years, so kindly multiply this power with this years. So what it will be, 8 into 6, it will be equal to 48 year. करना क्या है इसमें, ये जो अमाउंट दिया हुआ है 1024000, इसको डिवाइड कर दो 4000 से, ठीक है। तो कितना, 256 टाइम्स हो गया, किसी भी अमाउंट का है ना। अब इस 256 को 2 की पावर में बनाओ, कितना बनेगा, 2 की पावर 8 बनेगा। और पावर जो 8 बन के आई है उस 8 को मल्टीप्लाई किसमें करना है, 6 के साथ में, क्योंकि जितना ईयर यहां दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा आराम से सॉल्व। एक और देखते हैं इसका छोटा सा एग्जांपल। 3 टाइम्स दैट इज गिवन इन 10 years, मतलब ट्रिपल, दिस इज गिवन हियर ट्रिपल, सो वी विल यूज द पावर एज अ 3 हियर, 3 is to power here. ओके, हम अब पावर 3 में बात करेंगे, ओके, इन 10 years. So find the at CI, this is as CI, find the time in which 6000 rupees becomes 1458000. So kindly divide 1458000 divided by 6000. Okay, so these 30 will be cancel out, fine. So it will be 6 2 times and 45, sorry 25, that means 4 times, and it will be 3 times, so 243 here. So what the 243 value in the terms of, in the power of 3, so we can say 243 is equals to 3 is to power 5, fine. Multiply this power with this year, so 5 into 10, it will be equals to 50 year. That is your answer right now. तो देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिपल की बात की गई है। ट्रिपल का मतलब हम 3 की पावर में बात करेंगे। अब 10 साल यहां दिया हुआ है, 10 साल में होता है,
तो ये पूछा है कि ये वाला हिस्सा कब होगा, मतलब कि 1458,000 इसको डिवाइड कर दो 6000 से, 243 टाइम्स बन गया हमारा। अब 243 को क्या लिखोगे, 3/5, यही तो लिखते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो जब इसको आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 243। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई 10 से कर देना है तो कितना आ गया, 50 साल। यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का एग्जाम्स में, तो आपका 1 नंबर जाना नहीं चाहिए। आई होप these tricks are clear right now for you. Fine. So friends, if you enjoy this video, kindly like this video. Fine. And kindly share this video to your all the friends as much as you can. And friends, few friends were talking about to contribute as a voluntary fee for our educators. That's why I'm giving a payment link below this video. मैं एक पेमेंट लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे। कुछ लोगों ने क्यूरी की है कि सर हम वॉलेंट्री फी आपके एजुकेटर्स के लिए डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सो दे कैन गिव एंड योर मनी विल बी यूज्ड इन द सर्विंग अ लॉट ऑफ मिलियंस लाइव्स। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस से एजुकेट सीख रहे हैं। फाइन। सो ये आगे चलता रहेगा हमारा मुहिम। फाइन। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए और फेसबुक पर कमेंट करिए। अपने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर पूछने की कोशिश करिए। और फ्रेंड्स, हमने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक का, तो आप उस ग्रुप को हमारे पेज से ले सकते हैं। पेज में उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन है और आप सर्च भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के ग्रुप को और आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।